اور اب خبریں تفصیل سے۔ پاکستان نے آج شام سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ پونچھ کے میندھڑ اور بالاکوٹ سیکٹر میں پاکستانی فوج نے تقریباً شام 5:30 بجے بلا اشتعال گولہ باری کی۔ فوجی پاکستانی اشتعال انگیزی کا منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ واضح ہے کہ میندھڑ سی اور منکوٹ بلاک میں کل DDC پولنگ ہونے والی ہے۔ ایڈوکیٹ بابر قادری قتل کیس میں گرفتار نوجوانوں کے اہل خانہ نے پریس انکلیو سری نگر میں احتجاج کیا۔ گھر والوں کا کہنا ہے کہ تینوں نوجوان زاہد، آصف اور شاہد بے قصور ہیں اور انہیں غلط طریقے سے اس کیس میں پھنسایا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نوجوانوں کو حراست میں تکلیف دہ صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ گھر والوں نے انتظامیہ سے اس پر غور کرنے کی اپیل کی۔ واضح ہے کہ پولیس نے چند دن پہلے ایڈوکیٹ بابر قادری کے قتل کیس میں ملوث چند نوجوانوں کی گرفتاری کا دعویٰ کیا تھا۔ تین بندے ان کو پکڑ کے لے جا رہے تھے کہ ان کی حالت ویسی ہے۔ یہ 45 ڈیز بھی لگ بھگ مہینے بعد ان کو پھر کورٹ میں چڑھایا گیا۔ ہم گئے تھے SP حضرت بل اور SDPO زڈی بل۔ انہوں نے ہمیں گیٹ سے دن میں ہم 3 دفعہ بھی جایا کرتے تھے۔ وہ بولتے تھے ہمیں کسی سے نہیں ملنا ہے، اس بارے میں ہمیں کسی سے بات نہیں کرنی ہے، جبکہ ہم ان کو بول رہے تھے۔ جس ٹائم وہ جن بندوں کے ساتھ تھا ان کو بھی بلایا گیا SP آفس۔ پھر وہاں سے آ کے انہوں نے بھی بولا کہ زاہد کی کیسی حالت۔ اپنے طریقے سے انہوں نے بند کمرے میں یہ کیس بنایا کہ ایسی بات ہے، یہ اس میں ملوث ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے بھائی اس ٹائم اپنے کام میں ملوث تھے۔ BJP جنرل سیکرٹری وبودھ گپتا کا کہنا ہے کہ DDC الیکشن میں کثیر تعداد میں عوام کی حصہ داری ان لوگوں کے لیے کرارا جواب ہے جو وادی میں ملیٹنسی کی وکالت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گپکار الائنس نے پوری دنیا میں کشمیریوں کا نام بدنام کر دیا ہے۔ گپتا کے مطابق گزشتہ 1 سال سے پتھراؤ اور ملیٹنسی کے واقعات میں کافی کمی آ گئی ہے۔ جس ڈھنگ سے کشمیر کے لوگوں نے بمپر پولنگ کی، کھل کر پولنگ کی، وہ انہوں نے بڑا سندیش گپکارینز کو، پاکستان کو، ISI کو اور دنیا کو دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم شانتی چاہتے ہیں، ہم بھائی چارہ چاہتے ہیں، ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، ہم DDC کے چناؤں میں کھل کر ووٹ کریں گے، اور انہوں نے کھل کر ووٹ کیا کیونکہ پتھر بازی ختم ہو چکی تھی۔ آتنکواد اپنا آخری سانس کے اوپر ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر کے پولنگ سٹیشنز کے اوپر صبح 7 بجے اتنی ٹھنڈی میں ہماری ماتائیں اور بہنیں جو ہیں وہ 100 کی قطار کے اندر 7 بجے کھڑی ہو گئی اور انہوں نے وہاں پر پولنگ کی۔ لوگ فیڈ اپ ہو چکے تھے۔ 1990 کے بعد پہلی بار لوگ کھل کر آئے اور انہوں نے ان کو بڑا سندیش دیا، ہم بزنس چاہتے ہیں، ہمیں روزگار چاہیے، ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے، ہمیں ٹورسٹ واپس چاہیے، ہمارا سیب دنیا میں جائے، ہمارا سیفران دنیا میں جائے، ہمارا پشمینہ جو ہے جو 30 سالوں میں جو ختم ہو رہا تھا، اس پشمینے میں کوئی دوبارہ سے جان آئے۔ ان چناووں کے اندر ووٹنگ کر کے کشمیر کے لوگوں نے یہی میسج دیا ہے، یہ ڈیموکریسی کی جیت ہے، یہ دیش کی جیت ہے، یہ مودی جی کی جیت ہے۔ سری نگر پولیس نے ATM میں چوری کا کیس حل کر لیا ہے۔ بینک سیکیورٹی گارڈ ہی چور نکلا۔ ادھر اونتی پورہ پولیس نے چوری کی کاریں فروخت کرنے والی ایک گینگ کا پردہ فاش کیا اور 3 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ پیشی رپورٹ۔ جموں کشمیر بینک خمینی چوک کے ATM میں 9 لاکھ سے زائد رقم چوری کر لی گئی۔ مشین معمول کے مطابق لاک تھی، ATM میں کسی قسم کی توڑ پھوڑ بھی نہیں ہوئی، پھر اتنی بڑی رقم چوری کیسے ہوئی؟ پولیس کو جانچ میں پتا چلا کہ مشین کے کوڈ کو استعمال کرتے ہوئے رقم نکالی گئی اور یہ کام بینک کے امور سے جڑے ہی کسی شخص کا ہو سکتا ہے۔ پھر بھی کئی افراد سے پوچھ تاچھ کی گئی۔ اس دوران بینک کے سیکیورٹی گارڈ جاوید احمد نے اقبال جرم کر لیا۔ ملزم کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے پاس سے رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ ادھر اونتی پورہ پولیس نے چوری کی کاریں فروخت کرنے والے ایک گینگ کا پردہ فاش کیا ہے۔ اونتی پورہ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ بعض افراد سستے داموں میں کاروں کی خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ پولیس کو ابتدائی جانچ میں پتا چلا کہ اونتی پورہ علاقے میں
चंद अफराद चोरी की हुई कारों को कम कीमतों में फरोख्त कर रहे हैं और ये चोरी करदा कारें मुल्क की दीगर रियासतों से लाई जा रही हैं। इब्तिदाई जांच में हुए इंकिशाफ के बाद पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज किया और 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार शुदा अफराद में लेतापुरा के मोहम्मद शफी डार, लेतापुरा के शमीम अहमद भट्ट और काकपुरा के अब्दुल रशीद भट्ट शामिल हैं। इनके कब्जे से चोरी करदा 3 गाड़ियां बरामद की गयी। ये लोग चोरी की गई गाड़ियों के नंबर प्लेट तब्दील करते थे। इस केस में मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इनका मोडस ऑपरेंडी ये रहता था, गाड़ी जो है कहीं से चोरी की गाड़ी लाते थे। अब उसमें इन्वेस्टिगेशन चल रही है कहाँ से लाते थे, फिर उस पर नंबर प्लेट लगाते थे। वो नंबर प्लेट लगाते थे जो कि जेन्युइन नंबर प्लेट किसी और गाड़ी का होता था, इसी टाइप की गाड़ी जो है, सेम टाइप की गाड़ी, उसका नंबर क्या था तो ये इधर लगा के सेम टाइप ऑफ गाड़ी चलती थी। तो लोगों को पता नहीं चलता था इस तरीके से, लेकिन क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिली तो इसमें जब डिटेल में गए तो ये पता चला कि चोरी गाड़ी 3 गाड़ियां अभी तक सीज हुई है और 3 आदमी अभी तक गिरफ्तार है। फर्दर गिरफ्तारियां इसमें और भी होंगी और कुछ गाड़ियां और रिकवर होने के चांस है। अवंतीपुरा पुलिस ने एक किराना दुकान में चोरी के केस को भी हल कर लिया है और इस केस के 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया है। पट्टन के रहने वाले मुलजिमीन इमरान अहमद और सैयद जफर शाह के पास से चोरी की रकम 65,000 रुपये बरामद कर लिए गए और इस वारदात में इस्तेमाल करदा ऑल्टो कार भी जब्त कर ली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जिला गांधरबल के जमीन मालिकान इंतजामिया के खिलाफ काफी बरहम है। इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाने के लिए इंतजामिया जमीन हासिल कर रहा है। इन लोगों का कहना है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, सैनिक स्कूल, पुलिस कॉलोनी और कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी जैसे बड़े प्रोजेक्टों के लिए वो अपनी जमीनें पहले ही दे चुके हैं। लोगों ने कहा है कि वो अपनी जमीनें इंतजामिया के हवाले नहीं करेंगे क्योंकि मवेशियों को चराने के लिए भी उनके पास जमीन नहीं रह पाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने इन एहतजाजियों के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इनके मुताबिक इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए जिस जमीन की निशानदेही की गई है वो सरकारी मिल्कियत है। क्योंकि आज की डेट में इंडस्ट्रियल एस्टेट के मुलाजिम यहाँ पे आए थे इसको ऑक्यूपाई करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सारी जो बरादरी है, सारा जो गांव है यहाँ पे जमा हो गया इस चीज़ के लिए कि हम ये वाली लैंड नहीं देंगे किसी को, ना इंडस्ट्रियल एस्टेट को ना किसी और को देंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारी जो यहाँ पे हमारे पास जो लैंड थी ऑलरेडी वो हमने वक़्फ़ कर रखी है, चाहे वो सैनिक स्कूल की शक्ल में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की शक्ल में हो, या पुलिस कॉलोनी की शक्ल में, या पंडित कॉलोनी की शक्ल में हो। तीर गुपन तम खालान यपर जमीन कनाल कस तान वनस अचानक पत यमो त्रोमुत ये डेरा यम दपान यह अमि खतर नुमुत, लिहाजा कर अगर यम यह कर तेल कर दिन मकान खोपरन दिन दिन कुन जाय रसा दिन तो बे दिन यम तिब तमो होर पे तम बसक ये तम वनस ऐश कर न मुलाजमत न हेकान सह पढ़ाई कर बच्चे तमिस तूता ताकता सह येड़ वनस पोशान। 3-4 महीने पहले जो है वहाँ पर 60 कनाल जो स्टेट लैंड है वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को ट्रांसफ़र होगी, ये बाज़ाफ्ता बाय वर्च्यू ऑफ एन आर्डर। और लोगों का कहना है कि वहाँ पर हम माल मवेशी पालते हैं, कोई जगह नहीं है, वो गलत है। माल मवेशी पालने के लिए गाछराई लैंड होती है और गाछराई लैंड के साथ बिल्कुल हमने टच नहीं किया है। हमने जो है स्टेट लैंड जो है ये 60 कनाल जो है वही ट्रांसफ़र की और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को वहाँ पर स्मॉल स्केल यूनिट्स लगेंगे जो हमारे बेरोज़गार बच्चे होते हैं वो अपना रोज़गार कमाएंगे। तो इसमें ये उनका गलत है कहना कि हमारा ये गाछराई है, गाछराई लैंड नहीं है। जिला सांबा के रंजारी गांव के लोगों ने एसडीएम ऑफिस विजयपुर में मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। इंतजामिया पर बरहमी जाहिर करते हुए लोगों ने कहा कि साहिबबंदगी आश्रम के लोग जमीनों पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। गांव के पुराने तालाब पर भी आश्रम के लोगों ने कब्जा कर लिया है और वो लोगों को परेशान कर रहे हैं। एसडीएम चंद्रप्रकाश कोतवाल से मुलाकात में लोगों ने मांग की कि जमीनें खाली करवा के कब्जे करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आवाज दो, हम क्या चाहते, हमें क्या
मैंने आपको पहले भी दी हुई है वो तलाब के मसले की, 65 कनाल तलाब है वो। आवाज दो, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हमें क्या चाहिए? गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं। मैंने आपको पहले भी दी हुई है वो तलाब के मसले की, 65 कनाल तलाब है वो। रिनोवेशन है, कार ऑलरेडी बना था, बने ना साइड। आवाज दो, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते। आवाज दो, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हमें क्या चाहिए? गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं। मैंने आपको पहले भी दी हुई है वो तलाब के मसले की, 65 कनाल तलाब है वो। रिनोवेशन है, कार ऑलरेडी बना था, बने ना साइड पे करा। वहाँ पे एक तालाब है, उसकी 65 कनाल ज़मीन है, वो सारी की सारी ज़मीन वहाँ पे आश्रम ने घेर रखी है। तो हमारा यही है, आज हमारी मुलाकात एसडीएम साहब से भी हुई है, उनके बारे में संज्ञान में भी हमने जलाया है और उन्होंने आश्वासन दिया कि कल मैं आ रहा हूँ 11 बजे और वहाँ पे मैं देखता हूँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको रोका जाए। आश्रम वालों ने हमें बहुत ज़्यादा हरासमेंट किया, हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया। हम अपनी मर्जी से रोड पे नहीं चल सकते। अब 31 दिसंबर आ रहा, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ 31 दिसंबर को आके आप देखो, ये आश्रम है कि चाहे डांसर होते हैं, बादाम फेंके जाते हैं, टाफियाँ फेंकी जाती हैं, नाच कराता है, पैसे फेंके जाते हैं उसके ऊपर। हम लोग चाहते हैं कि ये हमारे साथ जो गलत ना करे, वो अपनी जगह में रहे, हमारी ज़मीन को ऑक्यूपाई ना करे, हमें परेशान ना करे। अगर जो परेशान करेगा हम। न्यूज़ 18 उर्दू ने हाल ही में गांधरबल के बंजर बस्ती की 3 बहनों की खबर नशर की थी जो इन दिनों मुश्किल हालात से गुजर रही हैं। ये मामला फिर सुर्खियों में है। एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ पोर्टल जिसका खुद का एक ट्रस्ट भी है ने इन लड़कियों की मदद करने के मकसद से मामले को सोशल मीडिया पर उजागर किया और अवामी फंड इकट्ठा किया। सिविल सोसाइटी और जिला इंतजामिया ने इस ज़िम्न में नोटिस लेते हुए पोर्टल के ओनर से रकम की तफसीलात तलब की हैं। पेश जावेद भट्ट की ये रिपोर्ट। गांधरबल जिला में कई अफराद ऐसे हैं जो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर परेशान कुन हालात से गुजर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू ने हमेशा ऐसे अफराद की परेशानियां और मसाइल को उजागर किया और उन्हें जिला इंतजामिया के इल्म में लाया है। बेशतर मामलों में इंतजामिया ने अपनी जिम्मेदारी अदा करते हुए मुतासरीन को राहत भी पहुंचाई है। न्यूज़ 18 उर्दू ने हाल ही में बंजर बस्ती में रहने वाली 3 बहनों की तकलीफ दे सूरत हाल को नुमाया किया था। इन तीनों बहनों का बाप मुनशियात के एक केस में जेल में बंद है तो मां का हाल ही में इंतकाल हो गया। कई लोगों ने इन लड़कियों की मदद की और उन्हें जरूरत जिंदगी का सामान मुहैया कराया। इस मामले में नया मोड़ उस वक्त सामने आया जब एक इलेक्ट्रॉनिक न्यूज पोर्टल जिसका खुद का ट्रस्ट भी है ने इन लड़कियों के हालात को सोशल मीडिया पर उजागर किया और मुतासरीन की मदद के लिए ट्रस्ट के बैंक अकाउंट में रकूमात जमा करने की अपील की। रिपोर्ट्स के मुताबिक अतिया दहिंदगान ने बड़ी रकम ट्रस्ट को मुहैया कराई है। अब जिला इंतजामिया ने इस मामले का नोटिस ले लिया है। डीसी गांधरबल ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए ट्रस्ट के मालिक को सम्मन जारी किया और इस ज़िम्न में हासिल होने वाली रकूमात की तफसीलात मांगी। इस दौरान एसएसपी गांधरबल ने भी इस मामले का नोटिस दिया और जांच शुरू कर दी है। मज़कूरा ट्रस्ट का बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिया गया है। चेयरमैन ऑफ दैट ट्रस्ट जो है और जिसने उस इशू को उजागर किया है वो भी बुलाया गया है डीसी गांधरबल की तरफ से और वो डिस्क्लोज करेगा कि व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस। अगर मान लो अभी मार्केट में तो ये न्यूज़ चल रही है कि 1 करोड़ प्लस अमाउंट आया, तो इतना अमाउंट अगर इकट्ठा हुआ है तो देन हु इज द राइटफुल ऑनर, वन थिंग। सेकेंड, जिसने डोनेट किया उसने किसको किया, तो हमारा पर्पज रहेगा कि डोनर को पूछा जाए रादर देन ये बीच में जो कंड्यूट है इसको पूछने के। तो अकाउंट फिलहाल स्टेटस पे अकाउंट का फ्रीज, आई एम श्योर वो फ्रीज हो चुका है। एग्जैक्टली मेरे पास तो डॉक्यूमेंट नहीं है, बट जो उनकी कम्युनिकेशन के हिसाब से दैट माइट हैव बीन फ्रोजन। एसएसपी गांधरबल ने कहा है कि मुस्तहिकीन तक फायदा पहुंचाने को यकीनी बनाने की जरूरत है। मान लो अगर किसी की सिचुएशन है
उनकी वो सिचुएशन और उनकी कंडीशन प्रोजेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए लोग हेल्प करने के लिए आए। बट एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन राइज, क्या उनको बेनिफिट गया या नहीं गया? आपने एक अच्छा काम किया, मैटर को पब्लिक डोमेन में लाया, डोनेशन है, बट क्या वो पैसा उन बच्चों तक पहुँचा या नहीं? सो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन का रोल बनता है। दे हैव टेकन इन द मैटर एंड इनिशिएटेड एन इंक्वायरी। क्वेश्चन ये डोनर्स कौन, और हम उन डोनर्स तक पहुँचेंगे, उनसे पूछेंगे आपने किस पर्पज़ के लिए डोनेट किया। अगर वो कहते हैं कि हमने ट्रस्ट को दिए तो किसी को कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो कहते हैं बच्चियों के लिए पैसा दिया, और फिर उनका हक बनता है, और बाय लीगल मीन्स इट विल बी इंश्योर्ड कि उन बच्चियों तक वो उनका राइटफुल मनी जो है पहुँचे। किसी को गलत इंटेंशन से इंटाइस करवाना, अट्रैक्ट करना, और किसी को एज ए बेट यूज करना उसके लिए, दैट इज रॉन्ग। तो पर्पज हैज टू बी डिपिक्टेड क्लियरली एट ईच टाइम एंड इन ईच ट्रांजेक्शन। ऐसा नहीं कि आप एक बार एक इशू को फ्लैग करेंगे और उसके बाद जितनी क्राउड फंडिंग होगी और उसके बाद आप उसको थोड़ा बहुत पैसा देंगे। समवेयर अकाउंटेबिलिटी हैज टू बी, और जस्टिफिकेशन उसकी देनी। बहुत सारे जो इस वक्त ग्रुप जहाँ भी चल रहे हैं, खासतौर पर क्राउड फंडिंग जमा कर रहे हैं, तो अगर ये क्राउड फंडिंग जमा होती है, ये अच्छी तरीके से यूटिलाइज होना चाहिए। जिस तरीके से आप लोगों ने स्टोरी की थी वैसे वही तो जर्नलिज्म है। बाकी लोग आते हैं, वो लोगों का वीडियो बनाते हैं और उनको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, पैसा जमा करते हैं, बाद में देते ही नहीं है। अपने ट्रस्ट अकाउंट नंबर सर्कुलेट करते हैं, उसमें लोगों से पैसे डलवाते हैं, बाद में अपने अकाउंट में रखते हैं। तो ये कहाँ की जर्नलिज्म है, ये कहाँ का इंसाफ है? तो इस पे इस वक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई यहाँ पे ली। एसएसपी गांधरबल साहब ने हमें यकीन दिलाई कि वो इस पे कार्रवाई करेंगे। डीसी साहब से हम कल मिले, उन्होंने भी यकीन दिलाई कि इस मसले पे वो गोरोज खोज करेंगे और इसका पूरा पर्दाफाश करेंगे, कितना फंडिंग जमा आज तक हुआ है और कितना इस वक्त अकाउंट में है। जरूरत इस बात की है कि इस तरह के उमूर से बाकायदा तौर पर निपटा जाए। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि गाँव की सतह पर कमेटियाँ तश्कील दे और ये कमेटियाँ अपने इलाकों में परेशानी से जूझ रहे अफराद की लिस्ट तैयार करते हुए जिला इंतजामिया तक पहुंचाए और उनके मसाइल का इजाला किया जाए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गांधरबल से जावेद भट्ट की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।